ہیڈ لائنز آپ جانیے آغاز کریں گے بڑے انتخابی مارکے سے۔ کل قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پنجاب اور کے پی میں قومی اسمبلی کی 3 جبکہ سندھ میں 2 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی۔ اس حوالے سے انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے۔ انتخابی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں ضمنی الیکشن کا دنگل کل۔ عمران خان 7 نشستوں پر مخالفین سے مقابلہ کریں گے۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر میدان سجے گا۔ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی 2 نشستوں کے لیے امیدوار میدان میں اتریں گے۔ آزاد امیدواروں سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے کل 101 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ پنجاب میں وفاق کی حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور صوبے میں برسر اقتدار پی ٹی آئی کے امیدواروں کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع ہے۔ این اے 157 ملتان سے شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہر بانو قریشی پی ٹی آئی کی امیدوار ہیں، جن کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی ہیں۔ فیصل آباد این اے 108 میں عابد شیر علی اور این اے 118 میں مسلم لیگ نون کی شزرہ منصب علی عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ کراچی کے لیے ضمنی انتخابات اہم ہوں گے کیونکہ یہ 23 اکتوبر کو شہر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے محض 1 ہفتہ پہلے ہو رہے ہیں۔ جیتنے والی پارٹی کو کراچی کی مقامی حکومت کے لیے ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں تقویت ملے گی۔ پنجاب میں 1434، خیبر پختونخوا میں 979 اور کراچی میں 340 پولنگ اسٹیشن قائم ہیں۔ ضمنی الیکشن کے سلسلے میں انتخابی سامان کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے۔ مردان میں قومی اسمبلی کے حلقے این اے 22 میں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں، بتائیں گے ہمارے نمائندے فضل حق۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 22-3 پر ضمنی الیکشن کے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ انتخابی مواد جو ہے نا متعلقہ پولنگ اسٹیشن جو ہے نا پہنچا دی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمشنر مردان ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ انتظامات کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور یہاں پر کتنے پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، کیا تیاریاں ہیں جی؟ کل یہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جس کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ پولنگ میٹیریل تمام پولنگ اسٹیشن تک پہنچ چکا ہے اور اس میں ہم نے 330 پولنگ اسٹیشن بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ 1014 جو ہے ہمارے بوتھ سے سب پریزائڈنگ آفیسر اپنا سامان پولنگ اسٹیشن تک پہنچا چکے ہیں۔ پولنگ اسٹیشن اسٹیبلش ہو چکے ہیں۔ اس میں 4,71,000 جو ووٹر ہے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ میری تمام ووٹر سے گزارش ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اپنے پولنگ اسٹیشن پر آئے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ شکریہ جی، آپ نے ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمشنر مردان ضیاء الرحمان صاحب کی بات اس لیے انہوں نے کہا کہ تمام تر جو میٹیریل ہے وہ متعلقہ پولنگ اسٹیشن پہنچا دی گئی ہے اور جو انتخابی عملہ ہے ان کے حوالے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 4,71,000 سے زائد جو ہے نا ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلا خوف و خطر آئے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فضل حق۔ آگے بڑھیں گے۔ الیکشن کمیشن نے این اے 24/4 میں پولنگ عملے سے تعاون نہ کرنے پر ڈی پی او کی شکایت کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آئی جی خیبر پختونخوا کو خط لکھ دیا ہے۔ 4 میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے ریٹرننگ افسران سے تعاون نہ کرنے کی شکایت پر الیکشن کمیشن حرکت میں آ گیا۔ الیکشن کمیشن نے خط میں بتایا کہ ڈی پی او 4 نے پولنگ سامان کی ترسیل کے دوران مناسب سیکیورٹی فراہم نہیں کی، جبکہ سیکیورٹی معاملات میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ڈی پی او کا رویہ بھی مناسب نہیں تھا۔ خط میں آئی جی کو ہدایت کی گئی ہے کہ حلقے میں الیکشن کے دوران فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور اب ایک اہم مسئلے کا رخ کرتے ہیں۔ نشتر اسپتال ملتان کی چھت پر لاوارث لاشیں کیسے پہنچیں، گتھی سلجھ نہ سکی۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب نے ایم ایس نشتر اسپتال کو خط لکھ دیا ہے۔ لاشوں کے گلنے سڑنے کے واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ نوٹس اور ایکشن لے لیے، انکوائریوں کے متعدد احکامات جاری، نتیجہ پھر بھی صفر۔ ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں کس نے اور کیوں رکھی؟ سوال تاحال جواب کے منتظر۔ لاشوں کا معاملہ رپورٹ ہوئے تیسرا روز۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کو بھی ہوش آ ہی گیا۔ ایم ایس نشتر اسپتال ملتان کو لیٹر جاری کر دیا گیا۔ لاوارث لاشوں کے گلنے سڑنے کے واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔
महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने MS से 3 रोज में रिपोर्ट मांग ली है। लाशों को छत पर रखने का जिम्मेदार कौन? महकमा सेहत जनूबी पंजाब की 6 रुकनी टीम खोज लगाने में मसरूफ। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर साउथ पंजाब मुजम्मिल बशीर 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रऊफ हराज इंक्वायरी कमेटी में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने मुसाफिर बरदार गाड़ियों में इमरजेंसी आलात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में आग बुझाने वाले आले की दस्तियाबी यकीनी बनाने और इमरजेंसी में शीशा तोड़ने वाला हथौड़ा रखने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ पेशावर अब्दुल कयूम आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कयूम, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए गाड़ियों में मुसाफिर बरदार गाड़ियों में जो है वो इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के जो आलात नस्ब करने के लिए हिदायत जारी की है, जिसमें कहा गया है कि गाड़ियों के अंदर जो स्टील राड लगाए गए होते हैं पर्दों से वो हटाया जाए। साथ ही साथ जो है आग बुझाने के आलात और शीशा तोड़ने के लिए हथौड़ा जो है वो ज़रूरी जो है लगाया जाए, और ताकि इमरजेंसी सूरत में जो मुसाफिर है वो गाड़ियों से निकल सके। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो हिदायत जारी किए गए हैं इसको तमाम ट्रांसपोर्टर हजरात जो है वो अमली तौर पर इसको फॉलो करें। अगर इसके बाद कोई भी खिलाफ वर्जी किसी ने की है इस हवाले से तो इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उधर अहमदपुर शिरकिया का कदीम पोस्ट ऑफिस टूट फूट का शिकार है। इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे गुलशेर। मैं इस वक्त अहमदपुर शिरकिया के नवाई इलाका चरी गोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक इकलौता पोस्ट ऑफिस जो कि अरसा दराज से बंद पड़ा है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, ये चन्नीगढ़ का इकलौता यानी कि डाकखाना है जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है, और दूसरा जो है ना यहाँ भूत बंगलों ने यहाँ देर डाल रखा है। हमारा इंतज़ामिया की ये नाअहली और भूत बंगला पेश कर रहा है। इंतज़ामिया और जो वज़ीर आज़म से हमारी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे इस पोस्ट ऑफिस को मुकम्मल कराएं, और जो प्राइवेट बिल्डिंग में बैठी हैं हुकूमत का कुछ खसारा कम होगा। जब अपनी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो इसी में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जी, उनका कहना है कि ये पोस्ट ऑफिस काफ़ी अरसे से बंद पड़ा है और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, और पोस्ट ऑफिस इस वक्त जो है प्राइवेट बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और उनकी अपनी सरकारी इमारत जो है इस टाइम नकारा है। लिहाजा उन्होंने वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अपील की है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गुलशेर। एक और खस्ता हाल डाक खाना का जिक्र करें। लोअर दीर का पोस्ट ऑफिस भी तवज्जो का तलबगार है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नवाब बादशाह। लोअर दीर का 2 कमरों पर मुश्तमिल डाकखाना, कदीम पोस्ट ऑफिस खस्ताहाली का शिकार, इमारत को किसी मसीहा का इंतजार। खंडर के मंजर पेश कर रहा है, हर चीज बिखरा हुआ पड़ा है, कोई परसर हाल नहीं है। पोस्ट ऑफिस को 2014 में जनरल पोस्ट ऑफिस का दर्जा दिया गया, इसके बावजूद हालत नहीं बदली। ये जी पोस्ट ऑफिस है और यहाँ भी हम काफी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास मनी ऑर्डर सर्विस है, हम मेल सेंडिंग भी कर रहे हैं। एक तरफ स्टाफ की कमी, दूसरी जानिब जिले हेडक्वार्टर के लिए एक ही डाकिया नाकाफी है। बाजारों में लगे पोस्ट बक्स भी जंग आलूद है। शहरियों का मुतालबा है डाक की सहूलियात को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़ देमरगरा। उधर लाड़काना में सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। गलियों सड़कों पर गंदा पानी बीमारियां फैलाने का बायस बन रहा है। रिपोर्ट करेंगे जैन आशिक पठान। पाकिस्तान का बड़ा सियासी गढ़, 2 वज़राए आज़म की आखिरी आरामगाह, पीपी कायदीन का आबाई शहर लाड़काना बरसों बाद भी अपनी किस्मत पर नोहा कुना। शहर भर में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, गंदगी के ढेर, शहरी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। डॉक्टर कहते हैं कि ये पानी जहरीला है, पूरा लाड़काना में पानी खराब हो चुका है, मेहरबानी करके इसको फिल्टर करके पिए। सीवरेज के खराब निजाम ने ज़ेरे जमीन पानी को भी आलूदा कर दिया, जो बीमारियों का सबब बन रहा है। ज़ेरे जमीन साफ पानी था, उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जिसके अंदर उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है और वो पानी आलूदा हो जाता है। जिले इंतजामिया के मुताबिक वाटर कमीशन के अहकामात पर डिस्पोजल्स और तालाब बनाए गए, जिनकी नए सिरे से तामीर की जरूरत है। कैमरामैन माजिद सुमरो के साथ जैन आशिक पठान, न्यू न्यूज़ लाड़काना।
महंगाई ने पंक्चर लगाकर गुजर बसर करने वालों को भी बुरी तरह से मुतासर किया है। मुजफ्फरगढ़ में कई मकामात पर पंक्चर की दुकान चलाने वाले इन दिनों हाथ पर हाथ धरे दिखाई देते हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे फरहान हाशमी। महंगाई ने पंक्चर लगाने वालों की गाड़ी पंक्चर कर दी। पंक्चर लगाने वालों का धंधा बुरी तरह मुतासर। दुकानदार कहते हैं रेट बढ़ने की वजह से कारोबार पर मनफी असरात हुए हैं। पहले जो ट्यूब 70 रुपए में मिलती थी अब 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। पंचरों का सामान अभी बहुत महंगा है। पहले जो है ना हमारे को पंचरों की डब्बी 70 रुपए की मिलती थी। अभी जो पंचरों की डब्बी है 120 की, कहीं 150 की, कहीं 200 की मिलती है। दूसरी तरफ शहरी भी परेशान। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। टूप लेते थे 80 रुपए की, आज मिल रही है हमें 250 और 300 रुपए में, जो हमारा गुजारा मुश्किल में होता है। कीमतों और उजरत में इजाफे के बाइस दुकानदारों और ग्राहकों में झगड़ा भी मामूल बन चुका है। कैमरामैन वाहिद शेरवानी के साथ फरहान हाशमी, न्यूज़ मुजफ्फरगढ़। और नाज़रीन, मंचलों ने मछली खाने के लिए पत्तोकी के इलाके हेड बलोकी में डेरे डाल लिए हैं। शहरी न सिर्फ वहां जाकर मछली खाते हैं बल्कि घर वालों और दोस्तों के लिए भी साथ लाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं न्याज अहमद। मौसम बदला तो जायका क्यों ना बदले, क्यों ना मछली का लुत्फ उठाया जाए। पत्तोकी के इलाके हेड बलोकी में मछली की दुकानों पर रश लग गया। यहाँ की रहू मछली का अपना ही मजा है, जिसे खालिस घी में फ्राई किया जाता है। लाहौर से स्पेशली फिश खाने के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसा टेस्ट, इस जैसा नाम हमने कभी भी अपने लाहौर से नहीं, इस तरह की कोई इतनी टेस्टी चीज नहीं हमने खाई। दुकानदारों के मुताबिक मछली को मसाला लगाकर कई घंटे तक रखा जाता है, जिससे लज्जत मजीद बढ़ जाती है। खालिस घी में हम मछली को तैयार करते हैं। ये रहू फिश होती है हमारे पास। इसको हम मसाला जात में ज़ीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, पीसा धनिया, मेथी, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसन इस्तेमाल करते हैं। और इसको खाने के लिए मुल्क भर से काफ़ी लोग आते हैं खाने के लिए। डिमांड बढ़ने की वजह से हेड बलोकी में मछली के कई आरजी स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन भट्टी के साथ न्याज अहमद, न्यूज़ पत्तोकी। उधर छांगा मांगा जंगल एशिया का सबसे बड़ा जंगल है जो हाथों से लगाया गया है। सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ सैर तफरी के लिए आती है। चुनिया से रिपोर्ट करेंगे महर वकार अनवर। ये है एशिया का सबसे बड़ा जंगल छांगा मांगा। चोनिया से चंद फासले की दूरी पर यह जंगल वाक़या है, जो 1866 में लगाना शुरू किया गया। इस जंगल का असल मकसद रेलवे इंजनों के लिए ईंधन फराहम करना था। ये जंगल छांगा मांगा 2 डाकुओं के नाम से मंसूब किया गया था, जो 18वीं सदी में इस जंगल में रहा करते थे, जिसका कुल रकबा 12,510 एकड़ है। जंगल को 1960 में कौमी पार्क बना दिया गया। छांगा मांगा का अक्सर किताबों में हमने पढ़ा था, तो आज हमने यहाँ आके देखा है। बहुत खूबसूरत जंगल है। यहाँ मैंने कश्ती रानी की सैर भी किया। सियाहों की दिलचस्पी का मरकज भाप से चलने वाले कदीम इंजन है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ छांगा मांगा के जंगल में चल रहे हैं। मेहताबी झील पर सियाहों को कश्ती में बिठाकर पूरी झील की सैर भी करवाई जाती है। बड़ों के लिए ट्रेन का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, हमने बहुत इंजॉय किया है। हम पूरी फैमिली यहाँ पे आए हैं, बहुत ही मजा आया। छांगा मांगा जंगल की जो एक बार सैर करता है, उसका दिल दोबारा उसे छांगा मांगा जंगल लाने पर मजबूर हो जाता है। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल ने वेस्ट को तलफ करने के लिए निजी कंपनी से मुआहदा कर लिया है। नुमाइंदा न्यू शौकत वट्टू तर्जुमान एलाइड अस्पताल के साथ मौजूद हैं। क्या बात हुई है बताएंगे शौकत। जी शौकत। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल डिवीज़न का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर जो है वो रोज़ाना जो है वो बड़ी तादाद में जो मेडिकल वेस्ट है वो यहाँ पर जो है वो निकलता है, ज़ाया होता है। और अगर जो ये मेडिकल जो वेस्ट होता है अगर ये दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए तो इसके जो ख़तरनाक नताइज हैं वो सामने आते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो अलाइड अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर अमाद अयूब शाह मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस मेडिकल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए अलाइड अस्पताल में क्या इंतजामात किए गए हैं और रोज़ाना कितनी तादाद में जो है वो मेडिकल वेस्ट जो है वो यहाँ से निकलता है। जी सर भैया क्या कहते हैं? आउटसोर्स कंपनी के साथ एक हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। हम उनको इस अमाउंट में मंथली पे करते हैं और हमारा जितना वेस्ट है, जितना मेडिकल ग्रेडेड वेस्ट है, वो सारा का सारा वहाँ पे जाता है और वो इसको बिल्कुल मेडिकल तरीके से इसको ठिकाने लगाते हैं। और वो तमाम का तमाम ISO सर्टिफाइड जो भी तरीके उसके हैं, जो भी हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक हैं, जो भी मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर, वो तमाम के तमाम फॉलो होकर हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो उसका बाकायदा हमारे पास एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, रजिस्टर मेंटेन होता है, जो हम हेल्थ केयर
कमीशन को भी वक्तन फ़वक्तन शो भी करते हैं और उसको फॉलो भी करवाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल के तर्जमान डॉक्टर अमाद अयूब का कहना है कि ये जो मेडिकल वेस्ट है कंपनी के साथ जो है वो मुआहदा किया गया है और उसके तमाम तार इंतजामात मुकम्मल किए जाते हैं और उसको अच्छे तरीके से जो है वो और महकमा सेहत और हेल्थ केयर कमीशन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक इसको जो है वो ठिकाने लगाया जाए। जी, उधर हैदराबाद में डेंगू के वार बढ़ते जा रहे हैं। मजीद कई अफराद इस मोहलिक मच्छर की लपेट में आ गए हैं। मजीद अपडेट करेंगे नासिर शेख। जी, हालिया बारिशों और सैलाब के बाद डेंगू के शिकार मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह बिटाइल अस्पताल लतीफ़ाबाद में के डेंगू वार्ड में और यहाँ भी जो है वो डेंगू के तमाम वार्ड जो है भरे हुए हैं। इसी तरह हैदराबाद के तमाम अस्पतालों में जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं डेंगू के हवाले से वो भर चुके हैं, जिनमें जो है सिविल अस्पताल हैदराबाद जो कि हैदराबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है वहाँ भी डेंगू के काफ़ी पेशेंट हैं। इसके साथ ही जो है शाह बिटाई अस्पताल, पुलेली परेडाबाद में गवर्नमेंट अस्पताल, कासमाबाद और कोसार के अस्पतालों में भी जो है वो डेंगू के मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक मलेरिया का स्प्रे नहीं किया जा रहा और ना ही बल्दिया की जानिब से कोई गली मोहल्लों के अंदर जो है वो मलेरिया या मच्छर मार स्प्रे नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है वो डेंगू का शिकार मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब तक जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से शहरियों में खौफ हिरास पाया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की सेहत के हवाले से दावे धरे के धरे रह गए हैं। लाखों अफराद पर मुश्तमिल जिला हवेली का वाहिद DHQ अस्पताल सहूलियात का फुकदान है। शहरियों को सिरिंज भी खुद खरीद कर लाना पड़ती है। सरदार साइरस निसार रिपोर्ट करेंगे। आजाद कश्मीर के जिला हवेली का अस्पताल सहूलियात से महरूम। अस्पताल की इमरजेंसी में सिरिंज तक की सहूलत नहीं। मरीजों को सिरिंज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। हम गरीब लोग हैं, सिरिंज भी बाहर से खरीद के लाते हैं, टीके भी बाहर से खरीद के लाते हैं। गरीब लोग की दर्जा कोई नहीं है, दवाई नहीं है कि अस्पताल में भी कोई नहीं चेक करा सकते। अस्पताल में सफाई के इंतजामात भी इंतहाई नाकस। जगह जगह गंदगी और तो और बेड शीट्स बदलने का भी इंतजाम नहीं। अस्पताल आने वाले बजाय सेहत पाने के मजीद बीमारी के खौफ में मुब्तला रहते हैं। शहरियों ने हुकूमत से अस्पताल की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। सरदार साइरस निसार, हवेली, आजाद कश्मीर। गवादर शहर में पानी के मसले के खिलाफ हक 2 तहरीक के कौंसलों और कारकुनों ने अनोखा एहतजाज करते हुए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर को ताला लगा दिया और दफ्तर के अंदर ही धरना दे दिया। ताहम इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे कोयटा से असमत अमान समलानी। मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। गवादर में 1-2 तहरीक के कारकुनों का अनोखा एहतजाज। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर की तालाबंदी करके इसके अंदर ही धरना दिया। धरने की वजह से 4 रोज तक पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की दफ्तर में काम ठप होकर रह गया। हक 2 तहरीक के काउंसलरों का कहना है जब डैम पानी से भरे हैं तो गवादर में पानी का कोई मसला नहीं होना चाहिए। हक 2 तहरीक का मुतालबा है कि गवादर में पानी के मसले को हल किया जाए और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग गवादर के एक्साइज को तब्दील किया जाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर गवादर से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। ब्रेक के बाद आपको बताएं अहमदपुर शिरकिया के नवाही इलाके चुनी गोट में फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद है। शहरियों को पीने का पानी लाने के लिए कई मील फासला तय करना पड़ता है। शहरी किस अजियत से 2-4 हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलशेर। उधर मीरपुर खास में सैलाब के बाद मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ चुका है। इस वक्त प्राण नाले पर क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, हम तहसील झुड्डो के उस मुकाम पर मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों की आबादी ज़ेरे आब आ चुकी थी। यहाँ पर शगाफ पड़ने की वजह से गांव साईदाद आलियानी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आया था। 30 से 40 फीट पानी यहाँ पर मौजूद था जिसकी सतह अब कम ज़रूर हुई है, लेकिन अब भी जो है चारों अतराफ पानी ही पानी नज़र आता है। लोगों के मकानात मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं, लोगों के घर जो है टूट चुके थे। यहाँ पर कई मकानात ऐसे थे जो पानी के साथ ही बह गए थे। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो मीरपुर खास एक तरफ मीरपुर खास है
और दूसरी तरफ जिला बदीन है, लेकिन बीच के अंदर पुरान नदी गुजरने की वजह से यहाँ पर आए हर साल जो इसी तरह शगाफ पड़ने का सिलसिला जारी रहता है। 2020 में यहाँ पर शगाफ पड़े, 2011 की बारिशों ने इन इलाकों को डुबोया था और अब 2022 के अंदर भी जो है वो इलाके जेर आब आए हैं, ये इलाके डूब चुके हैं। लेकिन इंतजामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इन इलाकों को बचाने के लिए कोई मुस्तकिल हल नहीं ढूंढा जाता है कि जिसकी वजह से इन इलाकों को बचाया जा सके। यहाँ पर मुतासरीन से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ना उन्हें इमदादी सामान चाहिए ना दीगर अशिया चाहिए, इंतजामिया जो है कोई मुस्तकिल हल ढूंढे और इन इलाकों को बचाने के लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बंद बांधे जाए, जिससे आइंदा बारिश अगर होती है तो ये इलाके जेर आब ना आए, बच सकें। जी।